गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हर्पीज वायरस के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्पीज वायरस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस वायरस, द वायरस, the any patient who is suffering with the herpes disease? Anyone? आप में से किसी ने ऐसे किसी पेशेंट को देखा है जिसे हर्पीज की प्रॉब्लम हो? राइट, फाइन। तो कोई बताना चाहेगा कि जब आपने देखा तो आपने क्या देखा? व्हाट वाज द प्रॉब्लम हैपनिंग विद द पेशेंट? श्वेता जी, आप बताना चाहेंगे? यस प्लीज, अनम्यूट। हाँ हाँ सर, हमारी मम्मी को भी हुआ था ये हार्पेस, हाँ और हमारी भी आंटी को भी हो रखा है। हाँ। ये सर कहीं पर भी किसी भी साइड, एक साइड से होता है, चाहे इस साइड चाहे मतलब एक साइड से पूरा होता है, और बहुत बुरी तरीके से इसमें बहुत पेन होती है, बहुत हाँ, ज्यादा, और बॉल्स बन जाते हैं, ओके, बबल्स जैसे बड़े बड़े। या सो देयर इज ए वेसिकल्स बन जाते हैं, द लाइक वाटर फिल्ड वेसिकल्स, राइट? यस सर, फाइन। इसको एकांगी माता बोलते हैं सर। एकांगी माता, राइट राइट, यस, एकांगी माता। हाँ सर। परफेक्ट। और वो सर एकदम मतलब एक साइड से ही होते हैं, मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे कहीं होगा, वो होंगे तो एक ही साइड, चाहे वो ओके, राइट साइड हो तो चाहे लेफ्ट साइड। यूनिलेटरल साइड। ओके, यस सर। क्योंकि ये डर्मेटॉम में होता है, मतलब एक ही साइड डर्मेटॉम में होता है। अब फाइन। पूरा नस तक सर इतना पेनफुल है कि क्या बोले। अभी हमारी आंटी को हो रखा है, इतना पेनफुल, मतलब कुछ छू नहीं सकते, स्किन में से कुछ भी टच नहीं कर सकते, कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं। अभी कितने दिन हो गए उनको? उनको सर 15 डेज। ओके, अभी भी उनको काफी दर्द है, राइट? हाँ, बहुत। ठीक है। ओके, शोभा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। शोभा जी। Yeah, one of our clients, sir, in the salon, she used to have big pimples, and around the pimple, skin is peeling. Okay, okay, yeah. Skin peels, and when that opens out, it is like a hole. Yeah. When pimples opens out, a hole it is. Okay. Full from the toe, it started for her, and the abdomen area, backside chest, the hands, everywhere she had, Okay. very badly she suffered. It was peeling, white layer used to come skin. Okay. Right. Fine. Yeah. Yes, Ramaswamy ji, unmute yourself. Yes, please. Sir, my wife is presently suffering. Actually, day before yesterday, I have put it in the group. Actually, what happened was this started on 1st of October. My wife was to go somewhere with her brother. Okay, next day. It was a Friday, and previous day she was doing some work and some itching. She felt something in the back, but she, because it is where where they tie the petticoat, she thought some undergarments or something, and she this one. But next day morning she was saying there is a lot of pain, and she cancelled the trip to wherever she had to go. She cancelled. So she asked me to see there. Some red marks were there. That's all. And but nothing had this one, just like scratching. So I also thought it was the undergarment mark and this one. But the next day, this, as you mentioned, water-filled vesicles were there, and then it was Saturday, so Sunday I could not take. My son was out of station. Monday we took her to the doctor, and they confirmed it is herpes zoster. Now it is 28 days. It started on 1st of this one. Today it is 28 days. Okay. Now I can't see you, sir. Okay. Yeah, it is 28. It is 28 days. Now the lesions have all dried up. Completely lesions have dried up. Blackheads have fallen off. Everything is over. But
she has got this post-herpetic neuralgia. Okay. Yeah. Okay, so because of that, she is suffering like mad, not able to sleep, day, night, pain, poking pain, nerve pulling, burning sensation, everything is happening. Fine. Got it. Got it. So you Thank have you, sir. explained very nicely. Yeah. Fine. Okay. So anyone सर else? बहुत बर्निंग रहती है सर इसमें। बहुत बर्निंग रहती है, राइट। यस, गुरदीप जी। गुरदीप जी। गुरदीप कौर जी। हाँ जी, या बोलो। हाँ जी, हाँ, गुड जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मुझे ना लेफ्ट साइड में स्कैपुला से स्टार्ट हुआ था, और जब भी स्टार्टिंग थी तो वो ऐसे लगता था जैसे भिंडी के बीज नहीं होते, 5 ऐसे स्पॉट्स थे पहले। वो स्टार्ट होके वो मतलब मेरे शोल्डर तक आ गया। तो मैंने एलोपैथिक दवा की, एंड आई डिड द मेडिटेशन एंड इवन प्राणिक हीलिंग, और जो भी उसने ऑइंटमेंट दिया वो भी, और आई डिड मतलब दैट एक्यूप्रेशर सब करके, मींस विद इन मतलब 10 days इट वेंट अवे। लेकिन बहुत पेन था सर, इतना पेन था, बिकॉज इट इज वो नर्व से स्टार्ट मतलब अंदर होती है ना, तो सर ज्यादा पेन था। तो अभी भी कभी कभी इफ आई टच दैट पार्ट तो ऐसे लगता है कि उधर दुखता है थोड़ा। लेकिन वैसे हीलिंग मेरी 15 days में कंप्लीट हो गई थी। 10 days में तो क्लियर हो गया था बिकॉज ऑफ दैट मेडिटेशन एंड ऑइंटमेंट, और एलोपैथिक भी मैंने लिया, सब किया, मतलब कि फटाफट। सबने मेरे को डरा दिया था कि टच होगी तो आप मर जाओगे। क्या होगा? टच होगा तो मर जाओगे? तो टच क्या होगा? मतलब राउंड हो गया तो आप मर जाओगे। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड, इफ इट टचेस मतलब द अदर साइड तो आप मर जाओगे। वो कभी अदर साइड टच ही नहीं करता है, लेकिन नहीं टच तो नहीं करता, लेकिन पता नहीं था ना सर मुझे। हाँ हाँ, यस, दैट वाज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, और वो डॉट डॉट ही थे, बड़े नहीं हुए, मतलब कुछ में पल्स नहीं, कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ स्मॉल डॉट, जैसे मच्छर काटता है ना सर। हाँ हाँ, लेकिन बहुत सारे हो गए थे फिर। जी जी जी। तो डॉक्टर ने बोला इट इज हार्पिस। तो आपको हमारे यहाँ पे नागिन बोलते हैं। और इसमें किसी ने मुझे रेमेडी बताई थी, अंडे के अंदर सिंदूर अच्छा वाला जो रहता है, उसको आप डाल के मतलब जिस साइड वो जा रही वो नहीं, उल्टे साइड आप लगा दो तो वो मतलब हील हो जाएगा। किया आपने? किया? नहीं सर, वो नहीं किया मैंने। क्या क्या किया? अंडे के अंदर कैसे? अंडे की जो मतलब व्हाइट होता है ना, हाँ, उसके अंदर सिंदूर होता है ना जो अच्छा वाला, हाँ, वो वाला मतलब मिक्स करके ऊपर उल्टे साइड को घुमाते हैं ना हाथ, तो ठीक हो जाता है। तो 2-3 जन का हो गया था, तो उन्होंने मुझे वो रेमेडी बताई, मैंने वो तो नहीं की। अंडे के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसमें मिक्स करके? क्या नहीं, व्हाइट में बोला था, एल्ब्यूमिन। अच्छा, तो अंडे का एल्बुमिन वाला पार्ट निकाल, नॉट इन द योक में नहीं, एल्ब्यूमिन में। एल्बुमिन का पार्ट निकाल कर और उसमें सिंदूर उसके को अंदर मिक्स करके सिंदूर डाल के उल्टे साइड, वो सूखता है ना सर, हाँ वो एल्ब्यूमिन सूख जाएगा तो वो खींच देगा ना बाहर। हाँ 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 हाँ, तो सिंदूर वाज दैट। समझ गया। हमारे एक आयुर्वेद में लाल बूटी आती है, लाल बूटी, तो वो उससे काफी मिलता जुलता है। एंड लाल बूटी इज आल्सो रिकमेंडेड फॉर दिस हर्पीज प्रॉब्लम। हर्पीज तो ये मैंने तो मींस एलोपैथिक, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग जो मुझे आता था वो मैंने किया। हाँ जी। लेकिन 10 days में इट वाज हील्ड, और 15 days में एकदम स्किन मतलब क्लियर हो गया था। लेकिन व्हेन आई टच समटाइम्स ना, तो एक पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे लगता है कि वो अभी भी रूट इज देयर। समटाइम्स आई फील दबाने पे दुखता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन हो गया था, ठीक हो गया था विद द गॉड्स ग्रेस। ओके, यस, ऋचा जी। सर मुझे भी हुआ था 8-1 साल पहले सर, पर वो बहुत पेनफुल था, बहुत ज्यादा। ओके। और मुझे विजाइनल था। ओके ओके। तो इट इज वेरी पेनफुल। ओके सर हॉस्पिटलाइज करा जब ही मेरा ठीक हुआ, नहीं तो नहीं ठीक हुआ। ओके। डॉक्टर्स को पहले समझ में ही नहीं आया था कि हर्पीज है। फिर नेक्स्ट मेरी लेडी डॉक्टर को समझ में आया, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटलाइज किया और फिर ड्रिप्स चालू करी, तभी मेरा ठीक हुआ। कितने साल पहले हुआ था आपको? सर 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहले हुआ था। हाँ। ओके ओके। सो इट इज रियली वेरी पेनफुल, और इफ इट हैपन इन द जेनिटल बर्निंग भी बहुत होता है, बर्निंग भी बहुत था, बहुत ज्यादा। और वेजाइनल था तो बहुत बहुत ज्यादा, यानी वो 15-20 दिन मुझे याद है कि यानी बहुत खराब थे, हॉरिबल निकले होंगे, मतलब है ना? हॉरिबल निकले। हाँ हाँ, यस यस यस, फाइन।
तो मतलब ये प्रूव हो गया, द हर्पीज इज ए वेरी वेरी पेनफुल डिसऑर्डर. ओके, it's a very painful disorder. It's not the skin disorder, because it's not only the skin disorder, it's a disorder who is affecting the nerves. So it's a really very painful disorder and many person have felt that. कई लोगों ने ऐसा महसूस किया है. तो चलिए जिद और कोई फीडबैक और कोई कुछ बताना चाहेगा? सबने बता दिया लगता है. तो अब हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. So this is the herpes simplex virus. हमारे herpes simplex virus भी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे we are not talking about herpes simplex. Right now we are talking about the herpes virus. Herpes virus. So we have already knowing that sometime the attack of chicken pox happened. Okay, कभी हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह चिकन पॉक्स फैल गया. तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की डिसीजेस फैली हैं. ऐसे इस डिसीज का दूसरा नाम है माता, एकांगी माता. एकांगी माता, like if you go in the village, then they are telling, okay, माता जी आ गई हैं, माता. So this is the disease happening because of the virus, and the name of that virus is herpes virus. And the herpes is skin disease as well. It is affecting our nerves. And the herpes virus can be divided in two parts. Number one, herpes simplex virus, and number two, herpes zoster virus. तो हर्पीज वायरस दो प्रकार का होता है. पहला होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और दूसरा होता है हर्पीज जोस्टर वायरस. तो किसी को यह वायरस प्रभावित करता है और किसी को यह वायरस प्रभावित करता है. एंड द मेन कॉज इज लो इम्यूनिटी. लो इम्यूनिटी, बिकॉज virus is there all around, but when we are having low immune system, this virus is attacking in our body. That's why we have seen, if the person doing regular pranayama and regular doing some immuno booster things, then because of the immunity this virus fail to attack. तो ये वायरस हमेशा लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ढूंढता है. और जब भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, किसी की इम्यूनिटी लो होती है, तब ये वायरस आसानी से इन्फेक्शन कर देता है. एंड इट्स द हाईली कंटेजियस वायरस. यह काफी संक्रामक वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है. इवन when the patient is coming to the doctor also should follow the precaution. डॉक्टर को भी काफी प्रिकॉशन रखना होता है, नहीं तो डॉक्टर भी इस वायरस का शिकार हो सकता है. So in this way, this is the main, we can see when we see the herpes simplex virus, we can see the source happen like this. We can see the source with the, we can see the blister here, and the blister is water filled. एक बुलबुला जैसा बनता है जिसके अंदर पानी जैसा भरा रहता है. So the blister can happen around the mouth. We can see around the lips it can happen. Even it can happen in the arms and near the wrist. और हमारे माउथ के अंदर भी हो सकता है. It can happen on the tongue, inside the throat region. ये हमारे throat में भी हो सकता है. It can happen inside the nose, inside the mouth, and it's very horrible, very painful. So the first, this happened in the form of vesicle only, and we can see the water filled vesicle. तो ये vesicle के रूप में उत्पन्न होता है. So it is affecting the skin and producing the vesicle. It might affect your mouth, so it will affect the mucous membrane of the mouth. It might affect the throat, so it might create the throat. Even it might affect the eyes, and it will create the redness in the eyes. तो हमारी आंखों को पर आक्रमण करके आंखों में रेडनेस पैदा कर सकता है, कंजंक्टिवाइटिस पैदा कर सकता है, गले को भी खराब कर सकता है. गले में भी ये ब्लिस्टर्स, वेसिकल्स पैदा करके गले को सोर थ्रोट बना देता है. और माउथ में भी आपको लगेगा छाले जैसे हैं, और माउथ में भी आक्रमण कर सकता है और स्किन में भी कर सकता है. So there are two types of virus I told you, the herpes virus 1 and the herpes virus 2.
Okay, so the primarily do infection around the mouth, हमने कहा कि मुख्य रूप से प्राइमरली तो ये माउथ के आसपास इंफेक्शन करता है, लेकिन ये दूसरा जो वायरस है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस भी होता है. So look at once again here. So the virus is two type, herpes simplex virus and herpes zoster virus. So HS1 V1 और HSV2 ये दो प्रकार का वायरस होता है. HS means herpes virus 1, herpes virus 2. तो माउथ के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है और जेनिटल इन्फेक्शंस भी कर सकता है. इवन इट कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. ओके, सो दिस इज अ वेरी कंटेजियस, हाईली कंटेजियस वायरस. और हम देख सकते हैं अगेन इट इज क्रिएटिंग द सोर्स अराउंड द माउथ. ये हमारे मुख के आसपास सोर्स क्रिएट कर रहा है. तो दो प्रकार का है, एक तो हमारे माउथ के आसपास जो पैदा हो जाता है, दूसरा जेनिटल पार्ट में भी पैदा हो सकता है. सो वी कैन सी इन द जेनिटल पार्ट दिस इज द herpes simplex virus 2 and it is creating the genital herpes. तो फीमेल के जेनिटल पार्ट में भी पैदा हो सकता है. इवन मेनी किड्स आर हैविंग सिंस द वेरी अर्ली एज. और कभी कभी तो बच्चे का जन्म होता है तो माँ से ही वो herpes उससे जन्म के साथ ही हो जाता है और माँ से हो जाता है. सो इट कैन बी हैपन इन द जेनिटल पार्ट एंड इट कैन बी हैपन इन द पेनल पार्ट. सो दिस द जेनिटल herpes एंड जेनिटल herpes इज आल्सो वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन. तो जेनिटल herpes हो जाता है तो पहला जनरली वायरस हमारे माउथ को, गले को, आर्म को प्रभावित करता है और दूसरा वायरस हमारे जेनिटल पार्ट को प्रभावित कर सकता है. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट एज पर द एक्यूपंक्चर? सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू इन द एक्यूपंक्चर द सिंगल पॉइंट फॉर द इन द एक्यूपंक्चर इज लिवर 3. लिवर 3 को सेडेट करते हैं. अगर आप पूछें कि एक पॉइंट बताइए तो आई विल टेल यू द लिवर 3. सो लिवर 3 इज द सिंगल पॉइंट हु आर कंट्रोलिंग द स्प्रेडिंग यंग इफेक्ट ऑफ द वायरस. तो जब हम लिवर 3 को सेडेट करते हैं बायलैटरल, इट इज वर्किंग वेरी नाइसली. सो वेदर वी आर सेडेटिंग द लिवर 3 और वी कैन सेडेट, और हम क्या कर सकते हैं? सो नंबर 1 ट्रीटमेंट, वी कैन सेडेट द लिवर 3 एंड इट विल सेडेट द लिवर यंग. ये हमारे लिवर यंग को सेडेट करेगा. और जब हम लिवर यंग को सेडेट करते हैं तो अपने शरीर में से गर्मी को निकाल सकते हैं. सेकेंड ट्रीटमेंट LI4 एंड लिवर 3, or this is called Forgate, that we know. This is called Forgate, and this is the second treatment. We are sedating LI4 bilateral and liver 3 bilateral. So this is the second treatment. Okay, now 1 minute. So LI4 bilateral and liver 3 bilateral, it will be the second treatment. But suppose the virus is affecting on the upper part of the body, or virus is affecting the genital part of the body, so we have to make little different plannings. So liver 3 is useful for all. Liver 3 is useful for all, and the LI4 and liver 3 also useful for all. तो अगर हम liver 3 की बात करें, ये किसी भी प्रकार का herpes हो, चाहे herpes virus 1 हो या herpes virus 2, दोनों पर काम करता है. ऐसे हम Forgate की बात करें, यह भी herpes virus 1 और herpes virus 2 दोनों पर काम करता है. So after that, now if we want to do the treatment, whether the herpes virus 1 or the herpes virus 2, if we want to do the treatment, अब चाहे हम herpes virus 1 का ट्रीटमेंट करना चाहें, चाहे हम herpes virus 2 का ट्रीटमेंट करना चाहें, so the first point we have to add LI4, because LI4 and LI11 are the very good point to expel the infection and heat. Infection and heat. तो LI4 और LI11 हमारे शरीर से इन्फेक्शन को और हीट को बाहर निकालते हैं. So the first 2 point will be LI4 and LI11, because with the help of LI4 and LI11 we can expel the unwanted heat. Now the second point will be spleen 6, spleen 9 and spleen 10. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, spleen 10 is these 3 points are the very good point for the genital herpes. इन बिंदुओं का प्रयोग हम genital herpes में करते हैं. Why? I will tell you why. So let's see now. So if someone is having the problem on the face or in the genitals, so someone is having the problem on the face
or some other person having problem in the genital. So if the person having problem in the face, we will use Li4 as a distal point. And the person having problem in the genitals, we will use spleen 6 as a distal point. हम spleen 6 का प्रयोग distal point के रूप में करेंगे. And whether this is the problem in the face or in the genital, अब चाहे problem face में हो, चाहे genitals में हो, हम Li4 और Li11 का प्रयोग जरूर करेंगे to expel the heat. We will definitely use Li4 and Li11 to expel the heat. Right now. So if we talk about the lower part, अगर हम lower part की बात करते हैं, तो lower part में especially we have to use spleen 6 now. When someone is suffering with the herpes problem, so it's so the person having dampness in the body, the person having turbidity in the body, the person having phlegm or humidity in the body. Because if the person having dampness, turbidity, phlegm or humidity, this is the favorable atmosphere for virus. तो जब भी हमारे शरीर पर कोई वायरस आक्रमण करता है, तो अगर उसे शरीर में डैम्पनेस, टर्बिडिटी, फ्लेम और ह्यूमिडिटी दिखाई देती है, तो ये वायरस के लिए एक बहुत ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग स्प्लीन 9 टू एक्सपेल डैम्पनेस. And even we'll use spleen 9 here, because dampness we have to expel in both condition. Dampness expel. तो dampness को तो हमें निकालना ही होगा, क्योंकि बिना dampness को निकाले हम herpes को मूल रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे. Now the next point will be spleen 10, because spleen 10 is the special point of blood. So the next point will be spleen 10, because spleen 10 will be the special point of blood. So let's summarize. So herpes in the genital part, genital herpes, and herpes in the face, face herpes. तो अगर किसी को genital part में herpes होती है, तो हम Li4 और Li11 का प्रयोग करेंगे for the heat, to expel the heat. We'll use spleen 6 for as a distal point, and we will use spleen 9 to expel phlegm or dampness, and spleen 10 for blood. And we will also add urinary bladder 17, which is the blood influential point. तो ये हमारा प्रोटोकॉल बनेगा, ये हमारा प्रोटोकॉल तैयार होगा जेनिटल herpes के लिए, कि जिसमें हमने Li4, हमने Li11 का प्रयोग किया, स्प्लीन 6, स्प्लीन 9 का प्रयोग किया, स्प्लीन 10 का प्रयोग किया, यूरिनरी ब्लडर 17 का प्रयोग किया, and we can never forget liver 3. We have to sedate all point, sedate all. So this is the treatment protocol for the genital herpes. Now, if we talk about the protocol for the herpes in the facial part, so Li4 will be the distal point. हमारा Li4 distal point होगा, and Li4, Li11 will be the point expelling heat. These points will expel the heat outside. Now, spleen 9 will be the very good point to expel dampness. हम dampness को बाहर निकालेंगे इस बिंदु से. So spleen 9 will be the very good point, and spleen 10 and urinary bladder 17 will be for blood. ये दोनों बिंदु हमारे blood के लिए होंगे. Okay. So if the person having, because see, in the herpes person is suffering with the too much pain and burning, too much pain and also warning sensation.
So warning is the warning, acute warning. Acute warning is the nature of yang. ये हमारे yang का nature है. Acute warning is the nature of yang. So remember. So we will sedate the yang. हम yang को भी sedate करेंगे. So how to sedate the yang? We will use the meeting point of all the yang. क्योंकि जब हम governing vessel 14 की बात करते हैं, the governing vessel 14 is the meeting point of all yang meridian. हमारे शरीर में पाए जाने वाला governing vessel 14 वो बिंदु है जो सारे के सारे yang meridian का meeting point है. So this is the governing vessel 14. All the yang meridian are crossing this. So whether the urinary bladder meridian, whether the gallbladder meridian, all the yang meridian, all yang crossing governing vessel 14. हमें yang को sedate करना है तो हम governing vessel 14 को भी sedate कर देंगे. So we'll sedate the governing vessel 14. And how to sedate the yang and any other technique? Yes. The other technique is this. Look at the ear. अगर हम कान को देखें, so apex of the ear, the apex of ear is called liver yang. So we can bleed the apex of the ear. We can bleed the apex of the ear. हम कान के apex से blood निकाल देंगे 20-25 drops. Blood can be taken out. Blood can be taken out. हम कान के apex से blood निकाल देंगे और इस blood को निकालने से क्या होगा कि liver yang कम हो जाएगा. So this treatment we have to add to bring the faster effect in this protocol. तो किसी को face की herpes है. If someone is suffering with a herpes on the face, facial herpes, or someone is suffering with a herpes on the genital herpes. So the first point will be LI4 and LI11 sedation for both. LI4, LI11 sedation for both. क्योंकि इस बिंदु की मदद से हम क्या निकालेंगे बाहर? Heat. The second point will be, I told you, spleen 9 sedation. Spleen 9 sedation. What we are going to expel with the help of this point? Dampness. The next point will be spleen 10 and urinary bladder 17. Spleen 10 and urinary bladder 17. इस बिंदु की मदद से हम क्या करेंगे? What we are going to do with the help of this point? We are going to improve the condition of blood. We are going to improve the condition of blood. Spleen 10 and urinary bladder 17, both points are good point for blood. And what else? और क्या करना है? Now liver 3 is the single point and very good point. Liver 3. Liver 3 is called the single point who work very nicely for the herpes. हम liver 3 को का भी प्रयोग करेंगे. तो आप यहाँ देखिए हमारा foregate भी बन गया. We already created the foregate here. Now as a distal point, now if we talk about the distal point, so here we will use LI4. हमने already ले लिया है. And here we are going to use spleen 6. So this is a very good and very nice protocol. And with the help of this protocol, we can treat the person suffering with the herpes now. Reducing the yang. Reduce yang. For reducing the yang, we will stimulate governing vessel 14 and bleed ear apex. Governing vessel 14 and bleed ear apex sedation. तो इस बिंदु के माध्यम से हम yang को reduce कर देंगे. So this will be the final protocol for herpes on the face and the genital herpes. Now, whether we have to do something extra, so I will tell yes, we might have to do something extra.
So let's write down for these point Li4, Li11, spleen 9, spleen 10, UB17, liver 3, Li4, governing vessel 14 plus ear apex bleeding plus, and on the other side Li4, Li11, spleen 9, spleen 10, UV17, liver 3, the distal point is spleen 6, then governing vessel 14 and ear apex bleeding. अगर आप देखें कि दोनों प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं है, other than distal point, there is no difference in both the protocol other than distal point. Now, what we are going to see. So remember one thing. If we found clearly that herpes is on the lips, if we found it's clearly that herpes is on the lips, then focus on the liver channel. If you found that herpes in the genitals, then focus on the liver channel. Why? अगर किसी को लिप्स में हर्पीज की प्रॉब्लम होती है या जिनाइटल में हर्पीज की प्रॉब्लम होती है, तो आपको लिवर चैनल पर फोकस करना होगा. Why? The reason is this only, as per the internal circulation of the liver, liver is entering from the DU20, then supplying both the eyes, then supplying the lips and the throat and the genitals. So if someone is having too much problem in the eyes, focus on the liver channel. If someone is having problem in the throat, focus on the liver channel. How to focus? What to do? Liver में करेंगे क्या? What we are going to do in the liver channel? So use 3-point Lou-Soxy. हमें लिवर के 3 पॉइंट लगाने होंगे जिन्हें हम कहते हैं Lou-Soxy. The meaning of Lou, Leo connecting point of liver. The meaning of So, source point of the liver. And the meaning of Z, Z cleft point of the liver. And we will set it all. The source point of liver is liver 3. Set it. इसको set it कर दो. अब मैं आपको बताता हूं. The G cleft point and the Leo connecting point of the liver. So we have to set it all the 3 points to bring the faster effect. Let's see now. So first I will show you the G cleft point of the liver. Look at here. So look at here. अगर हम liver channels की बात करें, if we talk about the liver channel, so let's start from the liver 5. So from the medial malleolus, going 5 tune up,
अगर मिडिल मेलुलस से हम 5 चुन ऊपर जाते हैं हमें मिलता है लिवर 5. Now from the medial malleolus going 7 चुन up हमें मिलता है liver 6. So liver 5 is the Leo point and liver 6 is the G cleft point. So we have to stimulate both the point and we have to sedate both the points. So we have two options. Option number 1, you can sedate with the magnets in the sujok, or you can sedate here with the needle. आप मैग्नेट से भी सेडेट कर सकते हो और निडल लगाकर भी सेडेट कर सकते हो. आप निडल लगाओगे तो निडल आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी. So you can sedate both the points liver 5 and liver 6 and definitely be able to sedate the liver 3 as well. Now the another technique, you can do the blood relating in this area. आप इस एरिया में ब्लड लेटिंग कर सकते हो. अगर आपको इस एरिया में कहीं भी एक ब्लड वेसल्स दिख जाए, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, आप इस एरिया में से कहीं से भी ब्लड लेट कर सकते हो और ब्लड लेट करके 20 to 25 ड्रॉप्स ब्लड निकाल दीजिए. इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट and will bring very faster effect. So the option number 1, just put the magnets. Option number 2, put the needle and do the sedation, and option number 3, do blood letting. तो जब हम ऐसा करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन चला जाता है. नाउ अब मैंने आपको बताया कि दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव इफ यू डू for the genital herpes, for the throat herpes, for the mouth herpes, tongue herpes, lips herpes. लेकिन burning sensation and pain is mainly due to liver yang rising. Liver yang rising, so we can always do this treatment for the patient suffering with herpes and the pain of the herpes. So look at here. So in this way, अगर हम इन चीजों को ऐड कर दें, if we are adding this thing, then we have to add liver 3, liver 5 and liver 6. Okay, even these points can be added here, but we cannot ignore these points in the patient suffering with genital herpes. So come back here. तो ये हमने आपको बताया कि दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट फॉर द herpes problem. Li4 and Li11 for expelling the heat. Spleen 9 is the for dampness. 10 for the blood. So this formula become very effective. Now let's see here. अब हम बात करते हैं कोल्ड herpes की. In the cold herpes, what we are doing? We are doing the tonification. Look at here. हम पॉइंट को टॉन करते हैं. We are doing the tonification. तो जब हम इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, let's see here. So we are taking the pericardium 6. Pericardium 6 is the very good point with the liver 5. The combination of pericardium 6 and liver 5, because we discussed the liver 5 is the, अभी हमने समझा liver 5 is the Leo connecting point, और pericardium 6 is also the Leo connecting point. So we are taking the liver pericardium axis, we are taking the zoo in axis. हम zoo in axis का प्रयोग करते हैं जब हम, because we already know the internal circulation of the liver is passing through the lips and mouth. तो जब किसी को कोल्ड herpes होती है या मुंह में ऐसे अल्सर हो जाते हैं, ऐसे अल्सर जो जलन नहीं करते, ऐसे अल्सर हो जाते हैं जो जलन नहीं करते,
So in this condition, we are taking the pericardium 6. Pericardium 6 is very good and empirical point for clearing the digestive path problems. So we are taking the pericardium and liver Leo connecting point. Again, we are taking Li4. Li4 is the distal point of the face. And with the help of Si3 and UV62, we are improving the defense and the yang. Si3 और UV62 की मदद से हम डिफेंस और यांग को इंक्रीज करते हैं. And UV40 is also very good point. If this problem happening in the back part, right? तो ये हमारा जो प्रोटोकॉल है, ये इसे हम कहते हैं the protocol for the cold herpes. Look at here. So the main cause of the herpes is stress and poor immunity. It is very contagious. So from the one person to the another person, it can be transferred. So the poor immunity is the main cause. तो हम कोल्ड हर्पीज के पेशेंट की जब हम बात करते हैं, तो कोल्ड हर्पीज के पेशेंट में हम यांग को बढ़ाते हैं. We are improving the yang in the cold herpes patient. So we are improving the yang with the help of Si3 and UV62 tonification. हम जानते हैं कि Si3 की बात करें तो Si3 is the very good point. Si3 is the master point of governing basal meridian. हमारा Si3 governing basal का master point होता है, और governing basal means yang meridian. And UV62 also the master point of the yang heel basal. ये भी हमारे yang heel basal का master point है. इन दोनों की मदद से हम yang improve करते हैं. Pericardium 6 and liver 5, they are making the axis or circuit. ये एक axis और circuit का निर्माण करते हैं. तो cold sore के लिए they are very good, and Li4 can be used as a distal point and as an analgesic point. हम Li4 का प्रयोग distal point या analgesic point के रूप में कर सकते हैं. UV40 का प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं अगर पीछे की तरफ प्रॉब्लम होती है. If the person having problem on the back side, then we are using UV40. Then this is the treatment protocol for the cold herpes. Okay. तो अगर हम बात करते हैं herpes zoster की, herpes zoster, जैसे कि अभी हमें रामास्वामी जी ने भी बताया, the virus of the cold herpes is looking like the chickenpox virus or the mumps virus. The primary symptom person will be having fever and runny nose. कि प्राइमरी सिम्टम क्या होंगे कि व्यक्ति को फीवर और रनी नोज होगा, और उसके स्पाइन के चारों तरफ भी कैन सी इस तरह के एक तरफ ही उसके वेसिकल्स पैदा होंगे. ऑन द साइड ऑफ द स्पाइन देयर विल बी मेनी वेसिकल्स appearing here. So this is the herpes zoster. So this is the herpes zoster and the primary symptom of the herpes zoster. और इन vesicles में काफी खुजली आती है. There will be lots of itching and pain. So these are the primary symptoms of the herpes zoster. कि इस तरह के vesicles पैदा होंगे और एक ही तरफ पैदा होंगे, यूनिलैटरल पैदा होंगे, या तो राइट में होंगे या लेफ्ट में. और अगर राइट में है तो लेफ्ट में नहीं जाएंगे, लेफ्ट में तो राइट में नहीं जाएंगे. We can see in this image. This is also on only in the one side. And these are affecting only one dermatome. हमारी स्पाइन से जो नर्व या डर्मेटोम निकलते हैं, so these are affecting only single dermatome or maybe many dermatome. लेकिन ये डर्मेटोम के पाथवे को फॉलो करते हैं, इसीलिए एक ही साइड में रहते हैं. So now, so the primary symptom will be fever, runny nose, and the problem vesicle around the thoracic spine. और जब ये प्राइमरी सिम्टम ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे, जब पेशेंट को लगेगा कि वो ठीक हो रहा है, तो कुछ सेकेंडरी सिम्टम जिसे हम कहते हैं पोस्ट हर्पीज न्यूरोलजिया, कि बीमारी ऐसा लगता है ठीक हो गई, दवाइयां बंद हो गई, लेकिन दर्द बना रहता है, दर्द बना रहता है. So in this way, the secondary symptom will be post-herpesic neuralgia. इसमें बड़ा दर्द होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि हर्पीज ठीक होने के बाद भी दर्द बना रहता है, और उस स्थान को टच करते हैं तो बड़ा दर्द होता है.
Sometimes we have seen many patients, the ophthalmic nerve is affected. Ophthalmic nerve. The ophthalmic nerve is the branch of fifth cranial nerve. Fifth cranial nerve हमारी जो पांचवी cranial nerve होती है, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक। जब ऑप्थेल्मिक नर्व प्रभावित होती है तो एक तरफ की पूरी नर्व को ये वायरस पकड़ते हुए स्प्रेड होता चला जाता है। वी कैन सी दिस वे। So this herpes virus may affect this part, only this part, right? And even अगर हम बात करें पोस्ट हर्पीज न्यूरल्जिया की, तो आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों के कॉर्निया में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉर्निया लाल हो जाती है, कॉर्निया की ओपेसिटी बढ़ जाती है, दिखना कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं केरेटाइटिस, एंड दिस द इन्फ्लेमेशन एंड द रेडनेस इन द कॉर्निया। तो ऐसे कई सारे सिम्टम हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? So the group number 1, again LI4 and LI11 sedation. हमें LI4 और LI11 को sedate करना होगा to expel the heat out. And we will take the spleen 10. Spleen 10 is the very good point for allergies and very good point for blood. We will take the spleen 10. और हमारे पीठ में है, इसलिए हम UV40 लेंगे। UV40 is the distal point of this area. We will sedate these all points. And group number 2 is most effective group. ये group number 2 बहुत effective है। Look at here. We are taking the triple warmer 6 and the triple warmer 8. And the triple warmer 8 is the very effective point. I will tell you why. कोई बताएगा कि triple warmer 8 ज्यादा effective क्यों point है? कई लोग कहते हैं कि जब स्पाइन के दोनों तरफ हर्पीज की प्रॉब्लम होती है, तो द सिंगल पॉइंट ट्रिपल वार्मर 8 आल्सो कैन बी यूज्ड एनीवन। go on to class because triple warmer 8 is the meeting point of all the yang meridian. हमारे सारे के सारे yang meridian का मीटिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 8। यानी ट्रिपल वार्मर 8 का मतलब है कि जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन तीनों मिलते हैं। सो लेट्स सी नाउ। सो ट्रिपल वार्मर 8, triple warmer 8 is the meeting point of Li, Si and Tw. So because the triple warmer 8 is the meeting point of Li, तो जब हम इसे लगाते हैं, so it will also work on the ST, stomach. It will also work on the UB, urinary bladder. It will also work on the triple warmer, means gallbladder. So it will work on the stomach, urinary bladder and the gallbladder. So in this way, अगर हम इस इमेज में देखें, so look at here. So it is going to work on the urinary bladder meridian, and we know the root of the urinary bladder meridian is here. So this is the urinary bladder meridian. It will also work on the gallbladder meridian. This is the gallbladder meridian. It will also work on the stomach meridian and stomach meridian in the front side. Stomach meridian in the front side. This. So it is going to work on all the half of the body. So triple warmer 8 is the very good point for this problem. हमारा ट्रिपल वार्मर 8 एक काफी शानदार बिंदु है, ट्रिपल वार्मर 8. So we are using this point and it working in whole half round. Other than this, हम ट्रिपल वार्मर 6 का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रिपल वार्मर 6 के प्रयोग से ट्रिपल वार्मर 6 हमारे गॉल ब्लैडर पर काम करता है, एंड ट्रिपल वार्मर 6 इज द फायर पॉइंट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन रिड्यूस द फायर. तो हम ट्रिपल वार्मर का प्रयोग करते हैं बिकॉज ट्रिपल वार्मर इज वर्किंग ऑन द गॉल ब्लैडर. सो इन दिस वे
triple Barber 6 and the triple Barber 8 will be the very good choice. Next, liver 5 is the Leo connecting point of liver. Liver 5 का प्रयोग हमने बार बार देखा है. और gallbladder 34 is the very good point because gallbladder 34 is the point of nerves as well as the spine, spinal nerves. हम जानते हैं कि gallbladder 34 is the influential point of nerves. तो जब हम इन बिंदुओं को साइडेड करते हैं तो they are also working very nicely for the herpes zoster, right? Herpes zoster, they are working very nicely. So these point protocol are very good for the herpes zoster. Now, regarding the post-herpetic neuralgia, अब हम पोस्ट herpetic neuralgia का आपको एक प्रोटोकॉल और बताते हैं. Let's see now. So LI4 sedation. LI4 is the very good painkiller point. SI3 sedation. SI3 is the super point of yang. ये yang का बहुत ही शानदार बिंदु है. And SI3 is very good point because ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें herpes पर काम करना है तो mainly we have to focus on the spine. हम स्पाइन का जितना ट्रीटमेंट करेंगे स्पाइनल नर्व का भी उतना ही ट्रीटमेंट होगा और हमारे पेशेंट को उतना ही फायदा मिलेगा. सो SI3 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द यंग. UV60 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर होल द बैक पार्ट. हमारे पूरे बैक पार्ट का UV60 इज द वेरी गुड पॉइंट. एंड gallbladder 34 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द नर्व्स. तो जब भी हम herpes चला गया उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट करते हैं LI4 sedation, SI3 sedation, UV60 sedation, gallbladder 34 sedation. LI4 is painkiller, SI3 working on the governing vessel, UV60 working on the back, gallbladder 34 working on the nerves. So LI4 is the painkiller, SI3 working on the governing vessel, UV60 working on the back, and governing vessel 34 working on the nerves. और ध्यान रखिएगा कि जब किसी के ट्रंक पार्ट में herpes होती है, so the best point always will be liver 3 sedation. Liver 3 sedation will be very good point for the herpes in the trunk part. तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस पार्ट में कहीं भी herpes हो, someone is suffering in the herpes in this part anywhere, front or back, so liver 3 always will be the very good point. So I am telling you again and again about the liver 3 because liver 3 is the very good point. और मानो कि किसी को forehead में कोई प्रॉब्लम है, suppose someone is suffering with the post herpetic neuralgia on the forehead, तो हमें forehead के कुछ पॉइंट यूज करने होंगे. तो हम gallbladder 20 को लगा के सिर की बिंड को निकालेंगे. Gallbladder 14 will be the local point, stomach 8 will be the local point, and UV10 से भी हम बिंड को निकालेंगे. So if someone is suffering with a problem in the forehead, अगर किसी के सिर में कोई प्रॉब्लम है तो हम 2 पॉइंट पीछे के यूज करेंगे. Let's see here. So this is the location of bladder 10. With the help of bladder 10, we can expel the bind out. This is the gallbladder 20. We will expel the bind out. इन दोनों पॉइंट की मदद से हम सिर की बिंड को निकाल सकते हैं. Now coming in the front side, stomach 8 will be the local point. ये हमारा stomach 8 local point होगा सिर का. So we'll use the bilateral stomach 8 and the gallbladder 14. Gallbladder 14 will be the local point. तो इन पॉइंट की मदद से हम यानी 4 पॉइंट्स हमारे होंगे जिनके द्वारा हम सिर में होने वाले पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया पर काम कर सकते हैं. यानी अगर किसी को herpes हुई और बाद में उसको दर्द इस पार्ट में बना रह गया तो हम इन 4 बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं. So in this way, these 2 groups for the treatment of the herpes, this group for the post herpetic neuralgia. Fine. Remember here again I have given few lines here कि जब whenever the liver yang is rising too much, then we have to add definitely liver 3 point. हमें liver 3 point को add करना ही होगा. UV60 point will be added if herpes in the back side of the body. Back side of the body. अगर हमारे शरीर के पीछे की तरफ
हर्पीज होता है तो हमें UV60 का प्रयोग करना होगा। स्टमक 40 विल बी यूजफुल इफ द हर्पीज इज इन द एब्डोमेन। अगर हमारे एब्डोमेन में हर्पीज हो रही है, आगे की साइड हर्पीज है, तो हम स्टमक 44 का यूज करेंगे एज ए डिस्टल पॉइंट। और अगर हर्पीज लेटरल साइड में है, लेटरल साइड में, तो हम गॉलब्लैडर 34 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि 1 पॉइंट विल बी फॉर ऑल, 1 पॉइंट फॉर द बैक साइड, 1 फॉर द फ्रंट साइड, 1 पॉइंट फॉर द लेटरल साइड। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू ऐड द पॉइंट। And the most important point is liver 3. We can never forget the liver 3. Liver 3 is the most important point. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हर्पीज का सही ट्रीटमेंट क्या होता है, कि आप लिवर 3 का प्रयोग करिए। यू कैन यूज लिवर 5, यू कैन यूज लिवर 6, सेड इट ऑल, प्लस गॉलब्लैडर 34, सेड इट दिस, प्लस इसके अलावा आपको स्प्लीन 6, स्प्लीन 9, स्प्लीन 10, सेड इट दिस, सो दैट डैम्पनेस कैन बी एक्सपेल्ड आउट। इन बिंदुओं को आप सेड इट कर दो तो डैम्पनेस बाहर निकल जाएगी। Li4 विल बी द पेन किलर पॉइंट, यूज द Li4। और इसके अलावा हमने जो समझा, अगर बैक साइड में है, फ्रंट साइड में, लेटरल साइड में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट प्रोटोकॉल चूज करना होगा। सो दिस इज द आवर primary treatment, the first treatment or the primary treatment of the herpes। तो अगर आपको ऐसा पूछना हो एक ही ट्रीटमेंट बताओ, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, एक ही ट्रीटमेंट बताइए, then you can use just this protocol plus liver 3, just this protocol for liver 3 for all types of herpes, whether the genital herpes, whether the herpes in the face, or whether the herpes anywhere in the body. You can use this protocol for all types of herpes. So Li4, Li11 for expelling the heat out, Li4, Li11 के माध्यम से हीट को बाहर निकालेंगे, और बाकी पॉइंट से हम डैम्पनेस को बाहर फेंकेंगे, और लिवर 3 से हम यांग को कम करेंगे। बस हमें जब कोल्ड सोर होता है तो कोल्ड सोर अराउंड द माउथ, तब हम पॉइंट को टर्न करते हैं और यांग को बढ़ाते हैं। और यांग को बढ़ाने के सबसे प्रमुख बिंदु है SI3 and UV62। SI3 and UV62 are very good point to improve the yang. So this protocol for the cold sores, cold herpes, right? So any questions? If you have any questions, you can ask. Okay, any questions? जब हम कोल्ड सोर्स की बात करते हैं, हमारे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था कोल्ड सोर्स को लेकर। So when the patient came with the complaint of the cold sores, initially it was burning a lot. Initially cold source was burning a lot. So when the source having too much burning, we cannot tonify any point. जब सोर्स में बहुत बर्निंग होती है तो हम पॉइंट को टोनिफाई नहीं कर सकते। So the person was having blister, उसे लगा कि मुंह में छाले हो गए, उसे लगा कि मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, और उसको जो कोल्ड सोर्स थे उसमें काफी जलन हो रही थी, बर्निंग हो रही थी। तो उसने पहले बी कॉम्प्लेक्स वगैरह का सेवन किया, और जब उससे कोई फायदा नहीं मिला तो उसने कहा लेट्स सी सम एडवाइस। तो हमने देखा इट वाज, उसने पहले सारा ट्रीटमेंट कर लिया था, और ट्रीटमेंट के बाद भी जब उसकी बर्निंग कम नहीं हुई तब हमने ट्रीटमेंट दिया था। सो इवन इन द कोल्ड सोर पेशेंट माइट कम टू यू विद लॉट्स ऑफ बर्निंग एंड इवन फीवर से लेके भी आ सकता है। तो जब उसे फीवर और बर्निंग होती है, बी नेवर टोनिफाई द पॉइंट, उस समय हम पॉइंट टोनिफाई नहीं करते। वी कैन डू द टोनिफिकेशन ऑन द पॉइंट आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 2 months, आफ्टर 2.5 months, इवन आफ्टर 1 month वी कैन थिंक अबाउट द टोनिफिकेशन। अगर उसे बर्निंग, फीवर और वो जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए तो हम कर सकते हैं। जी अंजलि जी पूछिए। अंजलि जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ नहीं, 15 years बैक मेरे नीस को हुआ था सर, आई के साइड में। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी आई साइट अफेक्ट हो गई सो है, उसको कुछ कर सकते हैं? या सो अब अगर उसे केरेटाइटिस हुआ था क्या? उनको केरेटाइटिस या कंजंक्टिवाइटिस कुछ हुआ था क्या? बाद नहीं सर। अच्छा, नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा। हाँ, तो आपको वही पोस्ट हर्पिजिक वाला ट्रीटमेंट देना होगा। पोस्ट हर्पिजिक जो हमने 15 years बैक हुआ था सर, अभी भी रिकवर हो सकते? देखो जितना पुराना होगा उतने चांसेस थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी हमने आपको जो प्रोटोकॉल बताया था उसको अभी जलन वगैरह तो कुछ नहीं होगी ना? नहीं 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 सर। अब देखिए इस कंडीशन में हम पॉइंट को टोनिफाई करेंगे, वी विल टोनिफाई द पॉइंट्स। तो अभी हमने आपको बताया था कि इन द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, इन द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया आपको जो पॉइंट लगाने होंगे, आपको एक तो पॉइंट लगाने होंगे गॉल ब्लैडर 14, ओके, स्टमक 8, ओके, गॉल ब्लैडर 20, ओके, एंड यूबी 10। ये तो हमारे सिर के पॉइंट्स हो गए। ओके, इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट और ऐड करना होंगे और उनको इवन मेथड से स्टिमुलेट करना होगा, जैसे LI4 इज द डिजिटल पॉइंट ऑफ फेस, LI4, ओके, SI3 because SI3, the SI3 also coming here, SI18 and one branch is going in the eyes, so SI3, UV60 and gallbladder 34। आपको ये पॉइंट को इवन मेथड करना होगा। ओके सर, है ना जी? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी मुस्कान जी। Sir, in last protocol of herpes zoster due to liver yang rising, you said ST44 for abdomen, that's distal point, but ST36 is distal point, no? No. There are, what we have discussed, stomach 36, spleen 6, there are 6 distal point we have discussed, they are main distal point, but all the transporting point are also the distal point। जितने भी transporting point होते हैं, जैसे stomach की हम बात करें, stomach 36, stomach 38, like stomach 38 is the distal point of frozen shoulder, stomach 40, stomach 41, stomach 43, stomach 44 सब distal point है, सारे के सारे distal point होते हैं। और सर ये blisters periodic हो सकते हैं क्या, मतलब after a period it comes and then goes, again it comes and goes? हाँ, वो hormones के कारण होते हैं, वो that is not because of the virus, that is happening due to hormones। Okay, तो उसके लिए आपको हार्मोन बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, थैंक यू सर। या सुरेंद्र सिंह नाची जी, सुरेंद्र जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो आपने एक प्रोटोकॉल बताई LI4, 11, SP6, 9, 10 और लिवर 3, हाँ, क्योंकि जिनको मैंने भेजना है वो थेरेपिस्ट नहीं है। हाँ, वो कनाडा में रहते हैं। हाँ जी, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई नीडल नहीं है वहाँ पे, तो सीड्स वगैरह अप्लाई करवा दूँ? हाँ करवा दीजिए। और ब्योल पे चल जाएगा जी? ब्योल पे चलेगा, बढ़िया चलेगा जी। और इतना ही? हाँ बस इतना ही। उनको कहाँ पर है सर? फेस पे है सारा। फेस पर? हाँ जी। हाँ तो करवा, बाकी वो फेस के अगर वो लगा सके तो फेस के जो पॉइंट्स हैं, फेस वाले जो पॉइंट्स हैं जी, वो भी लगा दीजिए। गॉल ब्लैडर 14 जी, स्टमक 8, यूबी 10 और आपका गॉल ब्लैडर 20 अगर लगा सके। नहीं तो पहले आप अगर सिंगल पॉइंट की बात करें तो सिंगल पॉइंट इज द लिवर 3, इसे हटा दो। सर लिवर 3 को कोई कलर लगा सकते हैं? कलर? हाँ जी, हाँ कलर लगा सकते हैं। अब लिवर 3 का खुद का जो कलर है वो है अपना येलो जी, तो आप काला रंग लगा सकते हो। काला रंग इज द सन ऑफ ग्रैंडसन, सो ब्लैक कलर इज द सन कलर ऑफ ग्रैंडसन, सो यू कैन पुट द ब्लैक कलर व्हिच विल सेडेट। अकेले ही काम कर रहेगा? हाँ, ब्लैक कलर काम करेगा उस पर। जी जी, हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम जी। जी मालवी जी, माधवी जी। यस सर, हर्पिस के बाद का पोस्ट हर्पिस अगर कोई स्कार रह जाता है तो उसके लिए, और वो कभी कभी पेन करता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं? हाँ, वो स्कार फॉर्मेशन, स्कार जो रह जाता है उसके लिए भी हमें यही प्रोटोकॉल लगाना होगा। उसी को हम बोलते हैं पोस्ट हर्पिडिक प्रॉब्लम्स और न्यूरल्जिया, कि हर्पी चला गया लेकिन अभी भी उसके स्कार में दर्द होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे जो हमने आखिरी में आपको बताया है, द पोस्ट हर्पिडिक न्यूरल्जिया, जिसमें हमारा LI4, SI3, UV60 और गॉल ब्लैडर 34 सेडेट ऑल। और उसमें हमने बताया था कि अगर ट्रंक में है तो लिवर 3 को सेडेट जरूर करना होगा। तो ये 4-5 पॉइंट आप लगाइए बस। It's on throat region, throat, below ear, कान के नीचे, गले में है, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ, तब भी आपको यह है। तो देखिए हम जानते हैं कि LI4 इज द डिजिटल पॉइंट ऑफ हेड एंड थ्रोट,
Li4 हमारे डिस्टल पॉइंट हेड एंड थ्रोट का। Si3 इज द, इस Si3 क्या करता है? Si3 हमारे गवर्निंग वेसल को कंट्रोल करता है, क्योंकि जितनी भी नर्व निकलती हैं वो सारी हमारे स्पाइन से निकलती हैं। और हर्पीज में सबसे जो मुख्य बात है कि आपको स्पाइन पर फोकस करना है। द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन द स्पाइन। ओके, और एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है हर्पीज का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द वेरी सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द हर्पीज, लुक एट द ईयर, ये कान को देखिए, एक निडल यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ, और पूरे कान में, पूरी रिम में ऐसी 4-5 निडल लगा दीजिए, 5, 6, 7, 8 निडल लगा दीजिए पूरी रिम ऑफ द ईयर में। इससे क्या होता है कि जब हम पूरी रिम ऑफ द ईयर को कवर करते हैं, तो ये रिम ऑफ द ईयर, क्योंकि कुछ दूसरे ईयर के माइक्रो सिस्टम है जिसमें पूरी स्पाइन को रिम पर माना गया है। द होल स्पाइन इज लोकेटेड ऑन द रिम। तो जब हम पूरी रिम पर रैंडमली, मतलब उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, रैंडमली आपने पूरे कान को घेर दिया, किससे? निडल से, और छोड़ दिया 1-2 घंटे के लिए लगाकर। दिस ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। तो मेनली वी हैव टू फोकस ऑन द स्पाइन इवन फॉर ड्यूरिंग द हर्पीज और इन द पोस्ट हर्पीजिक न्यूरल्जिया। Si3 हम इसीलिए यूज करते हैं कि स्पाइन पर फोकस हो जाए। फिर हमारा अगला पॉइंट है गॉल ब्लैडर 34। गॉल ब्लैडर 34 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ नर्व्स। ये हमारी नर्व का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, तो इसलिए हम इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। Li4, Si3, गॉल ब्लैडर 34 एंड UV60। सर, स्कार उभरा हुआ है तो वो बैठ सकता है? हाँ जी बिल्कुल, स्कार बैठाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि दर्द, दर्द बहुत तकलीफ, स्कार तो बैठ जाता है आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, रत्न प्रभा जी, रत्न पारखी जी। हाँ रत्न पारखी जी। सर मैं एक ये मतलब सब्जेक्ट से ये है, मेरी ये पोती आपके बहुत दीवानी है। अच्छा, जब भी आपकी क्लास होती, जब भी आपकी आवाज आती है, कहीं पर भी होगी आ जाएगी, ये देखिए, और फिर मेरे हाथ में इवन वो ये भी लेके चली जाती है अपना। तो इसको मैं फिर एक सर्टिफिकेट भिजवा देता हूँ अपने मास्टर हेमंत एक्यूपंक्चर एकेडमी का। जूनियर एक्यूपंक्चरिस्ट। वाह, सो नाइस। हेलो। जी हाँ जी, रामस्वामी जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। हाँ, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी Li11, स्प्लीन 10 एंड GB40 मेथी दाना लगाया था। GB40, GB40। ओके ओके, या यस यस, अच्छा। हाँ, So तो ये तीनों better to sedate. हाँ, sedate only with methi seed I put. Okay, fine. तो बाकी आपने दूसरे पॉइंट Li11 वगैरह नहीं लगाए? Li11 है, Li11 लगाया, Li11, spleen 10 and GB40. Okay, GB34 is still left, right? Okay, so but I did not do आपको Li4 और liver 3 नहीं किया। नहीं, स्प्लीन 6 तो मैंडेटरी पॉइंट है, क्योंकि और liver 4 and large intestine 4 and liver 3 नहीं किया। हाँ, और स्प्लीन 6 भी नहीं किया। हाँ, स्प्लीन 6 भी नहीं किया। तो ये करिए, स्प्लीन 6 इज द स्पेशल, करूंगा, या कर दीजिए, सेडेट कर दीजिए सारे पॉइंट, राइट? ओके। और even you have to use UV40, urinary bladder 40, and I will share you this protocol. Look at here. इसमें से कुछ अगर आपका छूटा, मैं आपको PDF दे दूंगा ये। Look at here. So group 2, triple warmer 6, triple warmer 8, liver 5, and gallbladder 34. Yeah. So this group 2 is very important. Okay. इसमें जो ट्रिपल वार्मर 8 is also very important point and liver 5 is also very important point. तो आप कुछ 2-4 पॉइंट ज्यादा लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 to 10 पॉइंट्स तो लगा सकते हैं आराम से। तो आपको मेनली ट्रिपल वार्मर के 2, गॉल ब्लैडर का 1 और लिवर का 1 पॉइंट लगाना होगा। और हमारा जो मेन प्रोटोकॉल है, और मेन प्रोटोकॉल, मैं लिवर 3, 5 and 6 करूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, करिए जरूर, ठीक है। थैंक यू, वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम।
नीता जी अनम्यूट योरसेल्फ। नीता जी, सचिन चावला जी। हेलो नीता जी दो जगह सर। हैं। हाँ 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 जी सचिन जी। सर मैं ये जानना चाहता था कि पोस्ट हर्पेटिक जो न्यूरल्जिया है, अगर तो एक्यूट है तो फिर तो हम इसमें सेडेट करेंगे जी। और अगर पुराना हो गया 6 महीने साल पुराना तो फिर सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे अकॉर्डिंगली रीजन वाइज। यस, अगर लगता है कि काफी पुराना हो गया है, अभी उतनी बर्निंग नहीं है, राइट पेशेंट है ना, बस तो तब भी हमें क्या करना होगा। लेकिन अगर उस समय भी उसको बर्निंग है तो हम इवन मेथड कर देंगे, हम टॉनिफाई नहीं करेंगे उस समय भी। और सर जो टीसीएम के ओरिजिनल पॉइंट है उसके बजाय अगर हम बियोल पे लगाएंगे वो थोड़ा इजी है और पेशेंट को भी इजी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि पूरी बॉडी पे तो कहीं भी हर्पिस हो सकता है, तो वो भी उतना ही काम करेगा सर। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा काम करता है बीएफसी। ठीक है, वो भी थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ नीता जी अनम्यूट। हाँ। सर मेरी मेड है। हाँ सर इसको आना सर इसको ये हुआ पड़ा है। क्या एक मिनट, नाक के नीचे थोड़ा रोशनी में। हाँ कहाँ पर क्या हुआ है? सर मेरे ख्याल तो लगता है यही है, ये देखिए। हाँ जी हाँ जी। कब से हुआ है ये सर आज सुबह आई है तो कह रही थी बड़ी दर्द है इसमें, जलन हो रही है। तो इसको फीवर और कोल्ड भी था। हाँ तो उसके सिम्टम वहीं से स्टार्ट होता है, फीवर कोल्ड से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा और उनको पॉइंट लगा दीजिए वाले। सर जलन नहीं है। हाँ जलन नहीं है तो अभी फीवर और रनी नोज था? नहीं अब तो नहीं है, फीवर है अभी तो नहीं लग रहा, अब तो ठीक। गोली खाई होगी ना? दवाई खाई कोई? शाम को खाई थी, अभी सुबह कुछ नहीं खाया। अच्छा, और उसमें उनको दर्द हो रहा है क्या वो फुंसी में? दर्द बहुत है सर अभी। हाँ, तो रहा हाँ दर्द कम। अब दर्द ठीक है, कम। आप क्या करिए, देखिए ये अभी फैल रहा है तो कुछ नहीं, आप पॉइंट तो लगा ही दीजिए, पॉइंट तो काम करेंगे ही, क्योंकि LI4 LI11 तो अच्छे ही पॉइंट है। पॉइंट तो 4 6 अपने, वो एक तो LI4 LI11 स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 और स्प्लीन 10, ये पॉइंट आप लगा ही दीजिए, है ना, स्ट्रेट कर दीजिए। कोल्ड तो नहीं है क्या? कोल्ड हर्पिस तो नहीं 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 सर यही डाउट था मुझे, इसीलिए मैंने बात की। वो आप इवन आराम से कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी जब फीवर होता है और जब फीवर के साथ साथ रनी नोज वगैरह होता है तभी हम पॉइंट को सेडेट करते हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति को सिम्टम लगे कि उसे हर्पीज हो सकता है तो तुरंत अगर वो प्राणायाम वगैरह चालू कर देता है तो तुरंत हर्पीज टूट जाता है। हर्पीज क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम से हार जाता है और टूट जाता है। हर्पीज को जब कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, तनाव करता है और उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो वायरस आराम से आक्रमण कर देता है। तो हमें थोड़ा प्राणायाम करना है ना, और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखना है, तो कोई बीमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू सर। सचिन चावला जी की तो बात हो गई। अश्विनी कुमार जी, यस। हेलो सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड सर बहुत लेट ज्वाइन किया, मैंने नहीं देखा सर। मैं कोल्ड हर्पिस के बारे में जब आप बात कर रहे थे तब मैंने ज्वाइन किया। आप मुझे प्लीज हर्पिस का मतलब बताइए सर। मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आधा घंटे में, 1 घंटे में। ओके सर। सर इसे अल्सर भी कहते हैं क्या? जी क्या अल्सर? क्या अल्सर कहते हैं क्या? नहीं, अल्सर इसमें होता है, ब्लिस्टर होता है, लेकिन ये एक अलग ही बात है। मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, पूरा देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू जी। ओके बेगम जी, बेगम जी क्या नाम है? हाँ जी। सर मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मुझे समझे मेरे बचपन में, नाउ आई एम अराउंड 63 years old, दैट इज मेरा 30s में ऐसा होता था कि मेरे लिप्स के ऊपर थोड़ा पुंछनी के जैसा कनकी जैसा आता था। हाँ। तब मेरे माताजी बोलते थे कि वो दिना के बाइक ना उन्होंने बोलते थे लिजर्ट का पेशाब उधर लगता रहेगा, उसलिए वैसा होता बोल के।
शी इज एन ओल्ड लेडी। वो बोली कि थोड़ा चुन्ना मतलब एक राई होता नहीं, पेपर होता, चुन्ना उठा के अपने हथली में रख के वो लिक्विड कर डालना है, थोड़ा पानी डाल के वो लिक्विड करना है। चूना, हाँ चूना नहीं, ये हथली में ऐसा ही हथली को गड़ा करके उसमें थोड़ा चूना करके, हाँ उसमें चूना डाल के उसमें पानी, हाँ वो हथली में कितना पानी लगता है कि वैसा पानी लगा के वैसा ही, अब कौन सा जगह पे हम अफेक्ट होकर है कि वैसा ही पकड़ना है, उस पे नहीं लगाना। मतलब वो लिप्स पे होता है तो वो लिप को नजदीक लाना है वो पानी के ऊपर, वैसा लाए तो लगाना नहीं है, नहीं लगाना, सिर्फ नजदीक लाना है, ऐसे नजदीक। वो हथली को गड़ा करके उसमें वो चुना लगा के पानी लगा रही ना, हाँ पानी हो जाता है ना, वो हथली में कितना माता की कितना पानी करना है, पानी करके वो लिप को वो पानी के नजदीक लाना है। ओके ओके ओके, बस वो पानी के नजदीक लाने के पहले देखे तो उस पे वो पानी पे कुछ नहीं लेयर रहता है, लेकिन वैसा ही ये समझो एक 3 लहजे ने 5 लहजे रखे है तो वैसा ही उसके ऊपर एक कलरफुल लिक्विड जैसा फॉर्म हो जाता रहता है। ओके ओके, हाँ हाँ, वो वैसा सुबह एक फेरा शाम में एक फेरा कर दिया तो तुरंत बराबर हो जाता है। अच्छा, आपका कहना है, मैं आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग कि हमने थोड़ा सा चूना हथेली में लिया, राइट? हाँ जी, पानी डालकर इसको मिलाया थोड़ा, राइट जी, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, फिर हम उसको, जैसे किसी को यहाँ पर है तो हम यहाँ ऐसे लेके आए, राइट? ऐसा ऐसा लेकर है, ऐसा। एक मिनट मैं आपका एक बार, एक मिनट रुकिए, दिख रहा है सर? कैसे लेके आना? देखिए ऐसा, हाँ ये करके ऐसा, आई मीन वो हथेली है ना, हथेली को एक गड़ा का जैसा बनाना है ऐसा। इसमें थोड़ा चुन्ना, एक राई नहीं पेपर होता, चुन्ना डाल के अच्छा मिक्स कर डालना है। मिक्स करके उसमें पानी डालना, पानी डाल के ऐसा दिखाना है। ऐसा बस बस बस, ऐसा दिखा दिए तो वो उसके ऊपर वो लेयर वैसा ही आ जाता है, एक शाइनिंग लेयर आता है। वो शाइनिंग लेयर आया तो सिर्फ 2 फेरा किए तो बस बहुत अच्छा, वो पूरा जहर उसमें है ना, जहर वो मेरा बहुत सारा, मैं 5-6 फेरा करी हूँ मेरे ख्याल से। ये स्पेशली हर्पीज के लिए बताया गया है कि वो ब्लिस्टर्स होते थे उसके लिए बताया गया है ये? सर मुझे व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज आई डोंट नो। ओके, वन ऑफ माय टेनेंट आल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम, उनको भी ऐसा ही ये लिप्स के ऊपर ऐसा ही इधर दाने 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 आने लगे थे। उनको मैं भी वैसा ही बोले, ऐसा ही पकड़िए तुरंत अच्छा हो जाएगा बोल के। शी वाज अबाउट टू अटेंड द फंक्शन द वेरी नेक्स्ट डे। सो वो तो बहुत घबराएगी वो, शी इज अ वेरी फैशनेबल लेडी, वैसा ही घबरा गई वो, मैं कैसा जाऊं ऐसा एक लिप्स के ऊपर रखे बोल के। मैं सुबह शाम 2 फेरा कर अच्छा हो जाएगा बोली, वैसा ही अच्छा हो गया उसे। ओके ओके, दूसरे दिन वो जगह पे इवन शी डिडंट हैव ब्लैक मार्क्स आल्सो। ओके, as it is she got cured. Wonderful, thank you so much. Yeah, this is my self experience I want to share in the group. बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की, थैंक यू सो मच। Welcome. But actually I don't know whether it is herpes or anything. दाने 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 इधर आता था, मुझे भी आता था, वो बाइक को भी, वो लेडी को भी आया था। We got it. Okay, thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you sir. Yeah, Sukriti ji, unmute yourself. Sukriti ji, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे हस्बैंड को आपको दिखा रहे हैं सर। पीठ में सर इस जगह पे बराबर दाने ब्लिस्टर छोटे छोटे होते हैं, रेड हो जाते हैं, फिर कभी हट जाते हैं। वो पाउडर लगाते हैं सर, व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा भी। ये पूरे रेड हो जाते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, वो गर्मी मतलब महीनों में सर 2-4 बार ये रेड हो जाते हैं, फिर ये पाउडर लगाने से, कैंडिड पाउडर लगाते हैं जिससे ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर होता है। तो ठीक है, इनके लिए ये हर्पीज तो नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको डैम्पनेस निकालनी होगी, क्योंकि जो भी इन्फेक्शंस होता है इस तरह का, वो डैम्प हीट के कारण होता है, डैम्प हीट। तो डैम्पनेस के लिए आप स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 का प्रयोग करिए। डैम्पनेस के लिए स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 का प्रयोग करिए। और इवन इसके लिए आपका हीट को निकालने के लिए Li4 Li11 का प्रयोग करिए।
डैम्प हीट निकल गई, और इसके मतलब डैम्प निकल गई, हीट निकल गई, है ना। अब हम ब्लड को थोड़ा प्यूरिफाई करने के लिए UV 17 एंड स्प्लिन 10 का प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन प्यूरिफाई द ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिन 10 एंड UV 17, एंड the distal point of this part, the distal point of upper part is distal point of this whole part. No, ये पीछे हो रहा है ना, पीठ में हो रहा है. This is happening in the urinary bladder meridian root. So we can use UV 60 and UV 60 as a distal point. UV 60 as a distal point. You just do this. आप ये करिए, सेडेट करिए, उनको बहुत अच्छा होगा. और सर इस हेड में भी बहुत ज्यादा स्कल्प होता है. हाँ, तो इससे ही कम हो जाएगा, इससे ही कम हो जाएगा. हाँ, UV 60 पूरे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को ऊपर से नीचे कवर कर लेगा. ओके सर, ठीक, राइट सर. सबको सीडेट करेंगे ना? सबको सेडेट करेंगे जी. थैंक यू सर. हाँ जी, हाँ जी, वेलकम. ओके, एनीवन एल्स? और कोई? सुरेंद्र जी, आप फिर से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ. अश्विनी कुमार जी. यस, हेलो. हाँ हाँ, बोलिए सुरेंद्र जी. सर, ब्योल पे जैसे अपना हाँ UV 10 और SP 20 इसकी थोड़ी लोकेशन ब्योल पे, और ST 8. ओके, तो देखो ST 8 तो हमारा यहाँ होता है. हाँ जी, तो हमारे अंगूठे में इधर ही होगा ST 8. आप चार्ट है सुजोग का? हाँ जी है. उसमें पहले देखिए, नहीं समझ में आया तो मुझे भेजिए, मैं आपको बताता हूँ. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वो चार्ट थोड़ा मेरे पास ऐसे ही है. अच्छा, देखो क्या है कि अपने थंब में, हमारा थंब इज द हेड रीजन, राइट? जी. तो स्टमक 8 आपको कॉर्नर में मिलेगा, ऊपर की तरफ. तो देखिए स्टमक 8 वही कॉर्नर में होगा. गॉल ब्लैडर 14 भी वही ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि आंख के ऊपर होता है गॉल ब्लैडर 14. जी, गॉल ब्लैडर 14 आंख के ऊपर होता है. तो इस मेथड से फिर बाकी हमारा जो एक पॉइंट है UV 10 पीछे होगा. UV 10 और यहाँ पर, क्योंकि गर्दन की समाप्ति पर UV 10 होता है ना. जी. तो गर्दन यहाँ समाप्त होगी, राइट? जी. तो यहीं पर आपको UV 10 और गॉल ब्लैडर 20 दोनों मिलेगा. चार्ट में आप देख सकते हैं, नहीं मिले तो बताना. जॉइंट पर मिलेगा, जॉइंट के पास, जॉइंट के ठीक पहले ऊपर. ठीक है सर. हाँ जी, ट्राई करिए, ना मिले तो मुझे पूछिएगा. जी सर, थैंक यू सर. ओके जी. सुकृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं, किसने हाथ उठाया? अश्विनी कुमार जी. हाँ, अरे अनम्यूट अश्विनी कुमार. यस सर, बहुत every 3 to 6 months I used to get herbs on here on my lips. हाँ, क्या होता है यहाँ, क्या होता है? हर्पिस यहाँ हो जाता है सर. हर्पीज? हाँ, तो उसका प्रोटोकॉल बताइए सर. बस वो आपको कोल्ड स्टोर वाला प्रोटोकॉल लगाना है. कोल्ड स्टोर वाला? हाँ. आपने बर्निंग नहीं, इचिंग नहीं होता? थोड़ा बर्निंग नहीं होता सर. बर्निंग नहीं होता ना? नहीं सर. हाँ, तो बर्निंग नहीं होता. हाँ, तो आप ये प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए. लुक एट दिस प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल आपको लगाना होगा. एक मिनट दिखाता हूँ आपको. यस सर. ग्रुप 2 का? नो, लुक एट दिस. यस सर. इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करिए आप. पेरिकार्डियम 6, लिवर 5, LI 4, SI 3, UV 40, UV 62, टोनिफाई ऑल. सभी को टोनिफाई करना है जी. आपको कहीं कमर वगैरह में दर्द होता है? नहीं सर, सिर्फ इधर ही आता है मुझे, सिर्फ इधर. और फीवर आता है आपको? On my upper lip only I used to get. नो, फीवर वगैरह नहीं आता ना? फीवर सर कुछ भी नहीं आता. बस आप ये सारे पॉइंट को टोनिफाई करिए, आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाइए. और क्योंकि हर्पीज का वायरस क्या है, अंदर पड़ा रहता है, हर्पीज का वायरस. सो इफ यू मेक योर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गर, then you can expel it out, right? Yes sir. 1 2 3 4 5 6. Note down these 6 points. Yes sir. B6, liver 5, LI 4, SI 3, UB 40, UB 60. Yes sir. Tonification. Yeah. Yes sir. Perfect. I will do. Yeah. Thank you. So you have cold herpes. That is cold herpes, right?
ओके, चंद लिखा है सर, चंद्र नादी हाउ हेल्प सुजाता सेठी प्लीज टेल। चंद्र नाड़ी, ओके ओके। So Chandra Nadi, you are already expert in the nadis. We are having two nadis, Surya Nadi and Chandra Nadis, okay? तो जब हमें फीवर होता है या गर्मी हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेके अगर राइट से छोड़ते हैं, that is Chandra Nadi, right? So with the help of Chandra Nadi or the Ida Nadi, we can improve the coolness in the body. और दूसरा एक मर्मा टेक्निक भी है, अगर आप YouTube में डालेंगे मर्मा पिंगला नाड़ी रेक्टिफिकेशन, पिंगला नाड़ी रेक्टिफिकेशन मतलब गर्मी को शांत करना, पिंगला नाड़ी को शांत करना, तो आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा 2 या 3 मिनट का। उन बिंदुओं को टैप करके भी आप इन्फेक्शंस को और गर्मी को बाहर फेंक सकते हैं। यू कैन एक्सपेल द हीट, इन्फेक्शन आउट with the Pingala Nadi rectification technique, means removing the heat, removing the Pingala Nadi effect of the Pingala Nadi, right? तो वो भी आप कर सकते हैं जी। राहुल वाशने जी, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। जो पैर के उंगलियों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ जी, नाखून के पास, उसको कैसे करेंगे? वो हमारे पैर की उंगलियों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एक तरह की हमारे शरीर में बड़ी हुई डैम्पनेस और स्प्लीन की कमजोरी होती है। वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों के जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं या जिनकी बॉडी में डैम्पनेस ज्यादा होती है, उनको अक्सर वो ज्यादा होता है। तो हमें उसके लिए ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट करना होगा। आप हमारे कौन से टेटाइज वाले ग्रुप में हैं? नाइट वाले में। हाँ, तो वो हम 1-2 दिन में ही डिस्कशन करने वाले हैं उसका। ठीक है सर, है ना जी। उसमें हम डैम्पनेस को निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे डैम्पनेस को निकालकर। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो लोगों के अंदर डैम्पनेस होती है ज्यादा, जिन लोगों का स्प्लीन कमजोर होता है, उनको अक्सर वो शिकायत हो जाती है। एक बार हो जाता है, उंगलियों के बीच में भी हो गया फंगल इन्फेक्शन, या पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो गया, बड़ी मुश्किल में ठीक होता है ना। ऐसा कई लोगों को देखो, विल डिस्कस दैट इन डिटेल। या ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। विजया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। विजया जी, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 जब देते हैं उसे कैसा यूज करना है? नहीं, एनीवन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसलिए लिखा है कि कभी कभी क्या करते हैं कि हमने ग्रुप 1 को लगाया और हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिखा, तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें। तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि चलो अब आप ये ग्रुप लगाओ। दोनों ग्रुप अपने आप में अच्छा काम करते हैं, लेकिन दैट इज जस्ट ए चॉइस कि चलो अब आपके ये पॉइंट किसी कारण से काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एवरी पेशेंट हैविंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके पास ये दूसरी चॉइस है। दोनों ग्रुप अपने आप में परफेक्ट हैं। हमें तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ये लाइकन और एरेप्शंस हो गया था। हाँ हाँ, ओके। तो उसके लिए पूरा बॉडी बर्निंग था, सब स्पॉट्स आके, लाइक अभी भी थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स है। इट वाज बर्निंग एवरीवेयर। अभी बर्निंग नहीं है, अभी इचिंग शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके। तो उसे क्या करना है? तो आपको देखिए, जब भी हमारे शरीर लाइकेन वगैरह का बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो तब भी हम ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट करते हैं। हम ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें ह्यूमिडिटी को निकालना होगा, हीट को। अभी हमने ह्यूमिड हीट लिवर गॉल ब्लैडर दिया था। हाँ, उससे कम हुआ था। ओके, अभी तो एकदम मींस सब जगह है, लेकिन इचिंग है आर्म में, लेग्स में, हाँ, फ्रंट बैक सब। या तो आपको ह्यूमिड हीट और लिवर एंड गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अभी भी वही करना है। हाँ, अभी भी वही करना है, लेकिन मेक श्योर कि हीट को निकालने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट लगा रहे हैं उसमें, ह्यूमिडिटी इन द लिवर एंड गॉल ब्लैडर में? लिवर 2, लिवर 14 बता देते हैं। लिवर 2, लिवर 3 लगाते हैं। लिवर हीट सेपरेट दिया था, तभी लिवर 2, लिवर 3, UB 18 सब लगाया था। ह्यूमिड हीट आल्सो आई वाज गिविंग। अभी हमने
liver 2, liver 14, gallbladder 24, gallbladder 34, GV9, UB 18, 19, SP9, LI11, ये सब sedate। ओके, SP9 कब से लगा रहे हैं आप? अभी छोड़ दिया, अभी तो कुछ नहीं लगाती, 1 हफ्ता कुछ लगाया था बस। इम्प्रूवमेंट हुआ था इन पॉइंट से? हाँ, तो आपको यही पॉइंट लगाने हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ, बस लिवर 3 को जरूर याद रखना है। लिवर 3 ऐड करना है। हाँ, लिवर 3 को याद रखना होगा। सो इचिंग उससे कम हो जाएगा। हाँ, और आपको गॉल ब्लैडर 20 भी लगाना होगा, गॉल ब्लैडर 20। हाँ, वो तो लिवर हीट में आता है। हाँ, वो लिवर हाँ, लिवर ह्यूमिडिटी में आ जाता है, क्योंकि वो बिंड निकालनी होगी, बिंड से भी इचिंग आती है, तो ह्यूमिडिटी को भी निकालेंगे हम, बिंड को भी निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे। ठीक है, आपका प्रोटोकॉल सही है, आप उसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज जनरली ये लाइकन प्लैनर्स के लिए क्या प्रोटोकॉल है नॉर्मली? एक्चुअली हमें एक्यूपंक्चर में तो उसे एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में ही डायग्नोसिस करना होगा कि ह्यूमिड है कि हीट है कि कोल्डनेस है कि व्हाटएवर। तो अकॉर्डिंग टू कोल्डनेस भी आता है लाइकन्स में भी जी, उसमें भी कोल्डनेस आता है। नहीं, अगर वो बहुत ही क्रॉनिक और ओल्ड हो गया तो कोल्ड हो जाएगा, लेकिन जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम उसे फिर कोल्ड में उस समय नहीं रखते हैं। बट व्हेन इट बिकम वेरी ओल्ड एंड तब ये ठंडी बढ़ने से अगर वो एग्रीवेट होने लगता है तो फिर हम कोल्डनेस कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज इनिशियली ऑल द इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आर हीट। जी रामा जी। हेलो सर, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, उसके बाद मेरी आवाज खरखर हो जाती है, ऐसा लगता है कि क्लियरिटी नहीं आ रही है। 5 मिनट भी अगर किसी से बात करूं तो ऐसा लगता है कि आवाज खरखर हो जा रही है। तो ये क्या लिवर लंग्स इन डेफिशिएंसी है? आप खाने के बाद पानी पीते हैं? नो। खाने के बाद सोते हैं? नहीं सोते। ओके, नहीं। अच्छा, और गला सूखता है आपका? सर पहले सूखता था, अभी नहीं सूखता। ओके, स्किन ड्राई है? हाँ, थोड़ी ड्राई है, थोड़ी मुझे एक्जिमा की भी प्रॉब्लम है। तो बस आपको स्प्लीन 6, किडनी 6, स्प्लीन मतलब लंग यिन का ट्रीटमेंट करना होगा। लंग यिन का जो भी पूरा ट्रीटमेंट है, लंग यिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, क्योंकि ये एक तरह का वही आपका वो, क्योंकि गले में क्या खरखराहट आ जाती है ना। खरखराहट मतलब जैसे लगता है क्लैरिटी नहीं है, खरखर करने लगे, ऐसा अंदर से फील होता है, क्लियर वॉइस नहीं निकलती है। हाँ, तो वो उसे हम बोलेंगे हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। एंड द स्पेशल पॉइंट फॉर दिस स्टमक 43, स्टमक 43 भी हम लगाएंगे, और CB22 को रोज एक्यूप्रेशर करेंगे गले में। We will do the acupressure on the CB22, and other than this we have to use the point of lung yin deficiency. And with stomach yin deficiency also? Stomach 43 is enough. मतलब स्टमक yin deficiency यूज करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मतलब हम कर ही रहे हैं, स्टमक 43 करने की जरूरत है। अगर लगेगा तो और भी पॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि आप, इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्टमक यिन तो है ही, क्योंकि स्टमक यिन पहले गड़बड़ होता है, हाँ, बाद में लंग यिन गड़बड़ होता है। हाँ, तो स्टमक यिन तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हमें गले पर फोकस करना है तो उसके लिए हम स्टमक 43 ले रहे हैं, और भी पॉइंट लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टमक 43 ले लें, बाकी लंग यिन वाले पॉइंट ले लें, तो वो भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है। ओके सर, ये कितना दिन ट्रीटमेंट करना होगा? आप कम से कम 15 दिन करिए। ओके सर, ओके। अच्छा सर, मेरे हस्बैंड के रिस्ट जॉइंट में हार्ट मेरिडियन में प्रॉक्सिमल टू मतलब 4-5 कोन ऊपर एक हल्की सी गांठ बन गई है। हाँ, तो सर उसको कैसे करूं? ये क्या टर्बिडिटी है या रिस्ट में बनी है? तो नो, प्रॉक्सिमल टू रिस्ट 4-5 चुन। हाँ, मैं समझ गया, मतलब रिस्ट से प्रॉक्सिमल आप ये मानिए कि लगभग 2 चुन की दूरी पर बनी है कलाई से ना। 2-3 चुन समझ लीजिए, 2-3 चुन प्रॉक्सिमल बनी है। So when the nodule in the heart meridian, so we are having multiple approaches. एक तो हमें क्या करना है कि इसमें सबसे अच्छा काम करता है हमारा डॉक्टर टैन का बैलेंस मेथड। तो डॉक्टर टैन का बैलेंस मेथड क्या कहता है कि if there is a problem in the heart meridian, treat the gallbladder meridian on the opposite side. तो अब आप पैर में चले जाइए, एंकल जॉइंट के पास gallbladder 40 यानी gallbladder meridian की आपको 3 पॉइंट लेना होंगे, gallbladder 40, 39 और 38।
ओके अपोजिट साइड में ये 3 पॉइंट लगाइए। ओके ये तो पहला ऑप्शन नंबर 1 हुआ। सेडेट करना है? हाँ, सारे पॉइंट आपको सेडेट नहीं, वहां सेडेट और टर्न की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू द इवन मेथड। ओके अच्छा, अब नोड्यूल में कोई पेन वेन तो होगा नहीं उनको? नहीं कुछ नहीं, भी, पेन इट इज नहीं। सिम्टमलेस। हाँ तो पेन इसमें नहीं भी है। ये भी एज पर द एक्यूपंक्चर दिस इज द फ्लेम फॉर्मेशन जी है ना। सो दिस इज द फ्लेम फॉर्मेशन। तो यू हैव टू, एक आपको रूट ट्रीटमेंट करना होगा। फॉर द रूट ट्रीटमेंट यू हैव टू डू द स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 sedation, ओके स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 sedation एज वेल एज द स्टमक 40 sedation। स्टमक 40 सेडेट करेंगे तो हार्ट का फ्लेम निकल जाएगा और हार्ट मेरिडियन के नोड्यूल पर अच्छा काम होगा। आप ये कर सकते हैं बस। ओके सर, इनको डस्ट एलर्जी भी हो जाती है, जैसे सुबह जब भी वो उठते हैं सुबह नाक से नॉट पतला पानी, थोड़ा सा लसलस पानी निकलता है और स्नीजिंग होती है, थोड़ी सी बारिश होने से भी इससे होता है, ये प्रॉब्लम भी है। इसका मतलब क्या स्प्लीन कमजोर है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर उनको ये रहा तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में बिंड हीट बढ़ी हुई है। दिस इज द इन्वेजन ऑफ बिंड हीट ऑन द लंग्स। तो बिंड हीट ऑफ द लंग्स भी निकालिए, तो बिंड हीट और लंग्स निकालने से और फायदा मिलेगा। और बिंड हीट ऑफ द लंग्स को निकालने के पॉइंट है हमारे, हम जानते हैं कि बिंड हीट ऑफ द लंग्स को निकालने के कौन से पॉइंट हमारे। एक तो है हमारा गॉलब्लैडर 20 जी, गवर्निंग वेसल 16 23 जी, और हमारा इसके अलावा यूवी 12 13 जी, और ट्रिपल वार्मर 5। ये तो हमारे बिंड को निकालने के पॉइंट होगा। हीट को निकालने के लिए Li4 Li11। ओके सर, मैंने ये ये लगाइए, इससे काम हो जाएगा। सर ये प्रोटोकॉल मैंने लगाया है तो दूसरे दिन उनका और थोड़ा तेज हो जाता है। अच्छा, आपने सेडेट किया सारा? हाँ ओके, तो ठीक है। अगर ऐसा करने से मतलब उनको परमानेंट बनी रहती है वो सारी चीजें? सर मतलब 15 दिन ठीक है, 2 महीना फिर ठीक हो गया, फिर वापस से हो गया, मतलब ये टेंडेंसी हो गई तो है। फिर क्या करना होगा? फिर देखिए, कहते हैं कि इफ समवन इज वेरी प्रोन टू कैच कफ एंड कोल्ड, अगर कोई व्यक्ति सर्दी खांसी कफ के लिए बड़ा ही प्रोन है, जरा सा मौसम बदला और उसको सर्दी खांसी हो गई, जरा सा खाने पीने में परिवर्तन हुआ और उसे सर्दी खांसी हो गई, तो इट इज अ साइन ऑफ लंग ची डेफिशिएंसी। सर ये सर्दी खांसी नहीं है, खाली नाक से लसलस जैसे सुबह सुबह ज्यादा निकलता है और स्नीजिंग होती है, और फिर अगर इसको कुछ नहीं किया जाए तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, ये चीज है। हाँ, तो उसे हम एलर्जिक सर्दी बोल सकते हैं ना। एलर्जिक सर्दी, तो हम सर्दी की कैटेगरी में तो रखेंगे उसको। इसका कारण होता है लंग ची डेफिशिएंसी। ओके, दिस द लंग ची डेफिशिएंसी। तो आपको लंग की डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल लगाए आपने उनको? हाँ सर, लगाया तो है। लाइक जब कौन से बिंदु लगाए आपने लंग ची डेफिशिएंसी के लिए? सर मैंने सर पहले एलर्जी का लगाया था पॉइंट, डॉक्टर वॉल के एलर्जी के पॉइंट, उससे डे 1 से उनको बहुत आराम होता है। डॉक्टर वॉल के एलर्जी के पॉइंट से उनको आराम होता है? बहुत, डे 1 से आराम होता है, लेकिन कुछ दिन ठीक होता है, छोड़ देते हैं तो वापस से फिर हो जाता है। हाँ, तो आप फिर आपको वही करना होगा, क्योंकि आपको जब भी किसी व्यक्ति को बार बार एलर्जिक सर्दी होती है जी, मौसम बदला, खाने पीने में चेंज हुआ और उसको सर्दी हो गई, तो ये बताता है कि लंग ची डेफिशिएंट है। तो आपको लंग की ची इंप्रूव करना होगी। लंग की ची को इंप्रूव करिए ताकि बार बार मौसम कोई भी परिवर्तन हो और उनको सर्दी खांसी कफ ना हो। और पीछे जो हमारा लंग का एरिया होता है वहां पर कपिंग करिए, ऐसे कप लगा के छोड़ दीजिए। कपिंग तो मुझे नहीं आती। अच्छा, वो बड़ी आसान सी है, हम डिस्कस करेंगे जल्दी से, ठीक है? ओके सर, किसी को अगर ऐसे मारो ऐसे या छोटी सी चोट लग जाती है तो वहां पर उसका नील जम जाता है। हाँ, तो इसमें क्या है? नहीं, अगर किसी को आपने मारा, और ये तो एक तरह की ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने किसी को टच किया, हाँ, और टच करने पर वहां पर, यानी टच करने पर कि मारने पर? नहीं, हल्का सा जैसे टक्कर लग जाए तो हो जाता है, नील जम जाता है, हल्का सा, नॉट बहुत तेज। अच्छा, ओके। एज कितना है पर्सन की? 38। मतलब उसे कहीं भी ऐसे मारा तो उसका नीला हो जाता है, राइट? हाँ, इतना इनफ है? हाँ। नीला होता है कि लाल होता है? नीला। और कितनी देर में डिसअपियर होता है बाद में? थोड़ी देर में, 10 मिनट 15 मिनट शायद। ओके, सो दिस इज द वन टाइप्स ऑफ ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। आप तो मारने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो
हवा में जाते हैं और हवा के संपर्क से ही उनकी स्किन में रेडनेस या डिस्कलरेशन चालू हो जाता है। तो दिस द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। इसके लिए भी आपको लंग का ही ट्रीटमेंट करना होगा। यू हैव टू मेक लंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि स्किन को लंग ही कंट्रोल करता है। दिस इज द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द लंग्स, ओवर सेंसिटिविटी। तो इसमें आप चेक करिए कि अगर मारने पर देखो हिट किया, हिटिंग इज द यांग, सी दिस इज द यांग। तो आपने यांग एक्शन किया और नील पड़ गया, इसका मतलब है कि उसमें बॉडी में पहले से ही थोड़ा सा यांग हो सकता है। सो दिस इज द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन एंड इट मे बी द लंग हीट। आप जीभ देखिए, क्या जीभ का टिप लाल है? टिप ऑफ द टंग इज रेड, वेदर रेड और नॉट, और कहीं पर्पल तो नहीं है, क्योंकि अगर जीभ का जो टिप होता है ना नियर और बंचुन एरिया, दैट इज टेलिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ लंग्स, वो हमारे लंग को बताता है। तो उसको देखिए, क्रॉस वेरीफाई करिए और भी कुछ सिम्टम देखिए कि कहीं लंग में गर्मी तो नहीं बढ़ी है, क्योंकि लंग में गर्मी बढ़ती है तब भी व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है टच के प्रति, है ना। अब देखिए, तो यानी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। ध्यान रखिएगा कि कोई बोलेगा कि मेरा जरा हाथ दबाओ, आप उसका खूब हाथ दबाएंगे, उसे ऐसे करेंगे, उसे अच्छा लगेगा, ये डेफिशिएंसी है। लेकिन कोई बोलेगा यार टच मत करो, टच ना करो, ऐसे किसी आपने टच किया, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आपने किसी को मारा और उसको नीला या लाल पड़ गया, ये एक्सेसिव कंडीशन कहलाती है। तो आपको लेकिन क्रॉस वेरीफाई करना होगा। दिस से इसके साथ क्रॉस वेरीफाई करिए, कहीं लंग हीट के सिम्टम तो नहीं है, जीभ का टिप रेड तो नहीं है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, फिर देखिए। या उसकी जीभ का फोटो भेजिएगा मुझे, तो मैं बताऊंगा आपको। सर अगर जीभ उल्टी करें, वहां पर नीला नीला हो, तो ये क्या होता है? जीभ उल्टी करें, स्टेसिस, अगर ज्यादा ही नीला है तो बताता है कि वो स्टेसिस कंडीशन है, दैट इज द स्टेसिस। तो मतलब किसका ट्रीटमेंट किया जाएगा? नहीं, वो तो फिर एनालिसिस करना होगा। इट माइट बी इट इज टेलिंग द स्टेसिस, अब वो किस पार्ट में है, फिर वो देखना होगा डीपर जाकर एनालिसिस करके। ओके, या वी हैव टू सर्च। किडनी का हो सकता है और किसी चीज का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। प्रियंका जी, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत ही अच्छा था सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। उससे मुझे एक इंसाइट ये मिले कि मेरे हस्बैंड के भी ऐसे ये हो रहा है। मैंने आपको मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है, ये साइड में हो रहा है इनके प्यूबिक, मतलब थाइज साइड में। ये ऐसे हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस समथिंग। अभी रिसेंट हो रहा है क्या? हाँ सर, अभी रिसेंटली हुआ है सर। कितने दिन से? सर ये 1 महीने से हुआ है। मैंने SP9 SP10 यूज किया था, कम हो गया था, उसके बाद अब वापस बोल रहे हैं वापस शुरू हो गया है। तो बहुत जलन होती है क्या? इचीनेस तो है सर बहुत। नहीं, तो ये तो सिंपल इचिंग है, ये हर्पीज वगैरह नहीं है। नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज करूं सर? आपको निकालनी तो डैम्प हीट ही पड़ेगी। यू हैव टू रिमूव द डैम्प हीट। डैम्प हीट के पॉइंट्स लगाऊं और कुछ करना है सर इसके अलावा इसमें? नहीं, आपको डैम्प हीट ही निकालना होगी, और इसमें आपको डैम्प हीट इन द लिवर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना होगा। अच्छा जी, सब पॉइंट्स बता दीजिए सर। मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ, ऐसे तो और भी पॉइंट हो सकते हैं। लिवर 3, so first point will be liver 3, the next point will be liver 13, gallbladder 20, gallbladder 50, gallbladder 20 and gallbladder 15। gallbladder 15, ये 4 पॉइंट हैं जो काफी फेमस पॉइंट हैं। इसमें हम और भी 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यानी ये 4 पॉइंट लगा के भी हम काफी अच्छे रिजल्ट देखते हैं। लेकिन कुछ और भी पॉइंट हमें ऐड करना होंगे डैम्पनेस के लिए। स्प्लीन 6, स्प्लीन 9, और हीट के लिए LI4, LI11। आप इतना करिए और फिर देखिए क्या होता है, नहीं तो कुछ हम पॉइंट ऐड करेंगे फिर। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। डन। हाँ जी, बोलिए सर। प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर कोई और भी प्रश्नों का तो आप शाम की हमारी ट्रेटाइज की क्लास में पूछ लीजिएगा वापस, हर पीच के ऊपर। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया, इसका आंसर भी हो,
या आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।